Exercise 8.2, question number 7. Find the middle term of the expansion. Question 7. This 3 plus x cube upon 6 raised to power 7. Find the middle terms. Middle term है, then n is equal to 7 and this is odd term, and total number of terms is equal to 7 plus 1 is equal to 8. अब हमारे पास number of terms है 8, then middle term हमारी 2 होंगी. Middle term this 7 plus 1 by 2, this 7 n plus 1 by 2 as a term, and this n plus 1 by 2 plus 1 as a term. That means the terms fourth middle term, fourth term and fifth term. Then fourth term और fifth term निकालेंगे यहाँ middle term निकालने के लिए. Then fourth term t4 निकालेंगे, that means t3 plus 1. Then general term जो हमारे पास होती है, this general term tr plus 1 ncr a raised to power n minus r b raised to power r. Then put the value. The n is 7c 3, r is 3, 7c 3, this 3 raised to power 7 minus 3, and this x cube upon 6 raised to power. ये टर्म निकालनी है हमने. This 7 factorial upon 3 factorial and 7 minus 3 factorial into 3 raised to power 4, 3 raised to power 4 into power की power multiply हो जाएगी, then x raised to power 9 upon 6 raised to power 3, 6 raised to power 3. And then this 7 factorial को लिख सकता हूँ 7 into 6 into 5 into 4 factorial upon 3 into 2 into 4 factorial into 3 raised to power 4, this 3 raised to power 4, 3 into 3 into 3 into 3 upon 6 into 6 into 6, and this x raised to power 9. Then this cancel out to this, 3 2 just 6, then 3 2 just 6, 3 2 just 6, 3 2 just 6. तो हमारे पास ये टर्म बची. Then 7 5 जो 35, 35 into 3, 35 into 3, 105. This value 105 upon 8 x raised to power 9 is the first middle term. First middle term is minus 105 x raised to power upon 8 x raised to power 9. The expansion in minus हमने प्लस में किया. अगर हमारे पास ये माइनस होगा then ये टर्म हमारे पास माइनस की होगी, और 3 टाइम्स अगर माइनस आएगा तो आंसर माइनस में होगा. Then this minus minus, और प्लस में था तो हमारा आंसर ठीक था, नो प्रॉब्लम. तो हमारे पास एक हमने फोर्थ टर्म निकाली. ऐसे ही हम एक मिडल टर्म और निकलेगी अभी हमारे पास t5 निकालेंगे. t5 निकालने के लिए t4 plus 1 and then this 7c4, this 3 raised to power 7 minus 4, 3 आ जाएगा, and this minus x cube upon 6 raised to power
4. This 7c4 is 7 factorial upon 4 factorial into 3 factorial into 3 raised to power 3 into 4 times माइनस आएगा तो प्लस का हो जाएगा. दिस x raised to power 12 upon 6 into 6 into 6 into 6 4 times. Then this 7 factorial 7 into 6 into 5 into 4 factorial upon 4 factorial or 3 into 2. This 4 factorial से 4 factorial cancel out. This 3 into 3 into 3 into x raised to power 12 upon 4 times 6. Then this multiply to 3 to just 6, ये cancel out हो जाएगा. This 3 to the 6, 3 to the 6, 3 to the 6. This value is 35 x raised to power 12 upon 48. This value is positive and this second middle term of this 35 upon 48 x raised to power 12 ये हमारी मिडल टर्म निकालने का फॉर्मूला था जिसको हमने किया और मिडल टर्म निकाल ली. तो इस 2 मिडल टर्म निकलेंगे क्योंकि द नंबर पावर इज इंडेक्स इज ओड. एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन. x by 3 plus 9y raised to power 10. Index is 10. Then n is equal to even number. N is equal to 10, which is even. And number of terms, total number of terms. Total number of terms is equal to 10 plus 1, 11, which is odd. Odd है तो that means this term n plus 1 by 2 जो हमारे पास n plus 1 दे रखा है plus 1 divided by 2 that means 6th term. इसकी 6th term हमारे पास जो होगी middle term होगी. middle term मिडल टर्म इज T6 और T6 को मैं लिख सकता हूँ T5 plus 1. That means 10C5 x by 3 raised to power 10 minus 5 and 9y raised to power 5. इसको आपको सोल्व करना है. Then this 10 factorial upon 5 factorial into 5 factorial. X raised to power 5 upon 3 raised to power 5 and this 9 raised to power 5 and this y raised to power 5. Okay, 10 factorial 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 factorial upon 5 factorial into 5 factorial 5 into 4 into 3 into 2. This x raised to power 5. This 9 raised to power 5. That means 9 into 9 into 9 into 9 into 9 into y raised to power 5 upon this. मैं 3 raised to power 5 से भी कैंसिल आउट कर सकता था लेकिन मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए ऐसा किया. देन 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 टू जा 10 कैंसिल एंड 4 टू जा 8 एंड 3 3 जा 9. ये हमने मल्टीप्लाई किया. ये पांचों इस 5 से कैंसिल आउट हो जाएंगे. 3 into 3 into 3 into 3 into 3 5 टाइम and then this 3 raised to power 5 और 6 3 raised to power 6 हो जाए. 3 raised to power 6 is 729 into 14
729 into 14, 10206. This is question. This multiply x raised to power 5, y raised to power 5, yes. And this multiply into 6, into 6, 61236. This multiply 61236, x raised to power 5 and y raised to power 5. This multiply this 3 into 3 into 3 into 3 into 3, this 729 into 3, this 3 raised to power 6 is 729, and this multiply 2 into 7 into 6, and this value, and then this term is middle term of this expansion. And next question number 9. Question 9. In the expansion 1 plus a raised to power m plus n, prove that the coefficient of a raised to power m is equal to the coefficient of a raised to power n. Prove करना है coefficient of a raised to power m is equal to coefficient of a raised to power n. ये हमें प्रूव करना है. The general term of this tr plus 1, this ncr, a raised to power m minus r and b raised to power r. तो यहाँ पे a की वैल्यू तो हमारी 1 है. Then this हमें क्या करना है? हमें करना है this n की जगह पे m plus n है, m plus n c r की वैल्यू हमें लेनी है, a raised to power m निकालना है. Then a raised to power m, a यहाँ कहाँ है? b की पोजीशन पे. and b की पोजीशन क्या है? a की पावर m. that means यहाँ पे हमारे पास m और 1 की पावर this m plus n minus m. that means this m plus n minus m. तो कोई भी पावर हो वहां पे पावर क्या हो जाएगी? 1 की कितनी भी पावर हो 1 ही हो जाएगी. that means this, तो हमारे पास r की जगह पे हमने क्या लिख दिया? m. r की जगह पे क्या लिख दिया? m. तो m plus 1 टर्म होगी. तो हमारे पास होगा m plus n c m a raised to power m and the coefficient is this. अब हम करेंगे r is equal to n लेके, r की वैल्यू को हमने n ले लिया, then t of r n plus 1 m plus n c n and then a raised to power n. हमारे पास ये टर्म आएगी और इसका a raised to power m का कोफिशिएंट क्या होगा? ये हमारे पास कोफिशिएंट होगा. इस कोफिशिएंट को हम सोल्व कर सकते हैं यहाँ भी और वहां भी. this m plus n कोफिशिएंट को सोल्व कर रहा हूँ, m plus n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल अपॉन m plus n माइनस m फैक्टोरियल. यहाँ पे हम ये सोल्व कर सकते हैं इसको. this m plus n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल into n फैक्टोरियल. n से n कैंसिल आउट हो जाएगा. and then this m plus n factorial upon n factorial m plus n minus n factorial and this a raised to power n, this a raised to power n. Then this m plus n factorial upon n factorial, this cancel out to this
this m factorial. The coefficient of this a raised to power m is this, and coefficient of a raised to power n is this. Both are same. Then coefficient of a raised to power m is equal to coefficient of a raised to power n. Both are same. तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया. Then find question number 10th. क्वेश्चन की बात करते हैं. तो 10 क्वेश्चन में कहा द कोफिशिएंट ऑफ r minus 1th term, r minus 1th term, rth term and r plus 1th term. इन टर्म्स की जो एक्सपेंशन है x plus 1 raised to power n are in the ratio of, इनकी रेशो 1:3:5. इसके अंदर रेशियो दी गई है, तो हमें फाइंड करना है n और r. एंड x प्लस 1 रेज टू पावर n दे रखा है, मैं उसको लिख रहा हूं 1 प्लस x रेज टू पावर n. मैंने एक्सपेंशन को ऐसे लिख दिया. एक्सपेंशन को ऐसे लिखने के बाद हमारे पास जनरल टर्म क्या है? जनरल टर्म है t r प्लस 1, देन n c r 1 रेज टू पावर जो भी आएगा हमारा 1 ही रहेगा, देन x रेज टू पावर r. ये हमारी जनरल टर्म हो गई. तो अभी जनरल टर्म हम r माइनस 1th टर्म निकाल रहे हैं. r माइनस 1th टर्म निकालने के लिए हमारे पास होगा r माइनस 2 प्लस 1th टर्म nc r माइनस 2 एंड x रेज टू पावर r माइनस 2. इज दैट क्लियर? दिस r माइनस 2 जो हमारे पास rth टर्म होती है उससे एक कम r होता है. जैसे rth टर्म थी उससे एक r माइनस 1. जैसे यहाँ r प्लस 1th टर्म निकाली तो यहाँ पे r आया, तो r की वैल्यू यहाँ है. दिस r प्लस 1th टर्म, क्योंकि एक टर्म ज्यादा निकलती है, तो r माइनस 1 है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? r माइनस 2. एक तो हमारे पास ये आएगा. दूसरा है rth टर्म, दिस r माइनस 1 प्लस 1. That means rth term. This rth term is n c r minus 1 x raised to power r minus 1. And then this rth term, this r plus 1th term, this n c r and x raised to power r. तो हमारे पास तीन कोफिशिएंट आ गए. दिस एक तो इसका कोफिशिएंट, एक इसका कोफिशिएंट और एक इसका कोफिशिएंट. तीनों कोफिशिएंट की रेशियो दे रखी है. अब रेशियो देखें. दिस n c r minus 2 रेशियो n c r minus 1 रेशियो n c r किस रेशियो में दे रखी है? रेशियो दे रखी है 1:3:5. तो हम इसको सोल्व करेंगे. पहले दो टर्म को लेंगे, दो रेशियो लेंगे, फिर अगली दो टर्म लेंगे, फिर दो रेशियो लेंगे. देन 9 फैक्टोरियल अपॉन r minus 2 factorial and this n minus r plus 2 factorial is this term. इसके रेशियो में आएगी टर्म this n factorial upon r minus 1 factorial upon n minus r plus 1 factorial. और इसके रेशियो किसके इक्वल ले लेंगे हम? this रेशियो 1:3. या आप ऐसे लिख सकते हो दिस रेशियो इज इक्वल टू 1:3. देन n फैक्टोरियल, दिस n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल आप रेशियो में भी कैंसिल आउट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे n फैक्टोरियल डिवाइड में करके दिखाऊंगा आपको. n फैक्टोरियल दिस r माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r प्लस 2, n माइनस r प्लस 2 फैक्टोरियल. डिवाइड में टर्म जाएगी दिस n फैक्टोरियल अपॉन r minus 1 factorial, r minus 1 factorial n minus r plus 1 factorial is equal to 1/3. this n factorial से n factorial कैंसिल आउट हो जाएगा. this r minus 1, this r minus 2, तो r minus 1 को बाहर निकालने का r minus 2 आपके पास फैक्टोरियल आ जाएगा.
दिस ये ज़्यादा बड़ी टर्म है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस फैक्टोरियल हटा के यहाँ पे लिख सकता हूँ n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको लिख सकता हूँ r माइनस 1 इंटू आर माइनस 2 फैक्टोरियल। तो हमारे पास टर्म कैंसिल आउट होगी, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास ये टर्म ऊपर चली जाएगी, वो टर्म नीचे आ जाएगी। दिस r माइनस 1 अपॉन n माइनस r प्लस 2 इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस 3r माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस r प्लस 2। इक्वेशन सोल्व करेंगे, दिस n प्लस 4r माइनस 5 n प्लस 4r 3r माइनस 4r सॉरी, दिस n माइनस 4r इज इक्वल टू माइनस 5। ये हमारे पास टर्म बनेगी। दिस ये एक आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई। अब दोबारा से हम रेशो को लेके चलेंगे। दूसरी रेशो क्या थी हमारे पास, n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल एंड दिस n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन दिस n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/5। ये 3/5 एंड देन सोल्व करेंगे अब इसको। दिस n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर देता हूँ। दिस r माइनस 1 है, ये r है, तो इसको भी r माइनस 1 फैक्टोरियल करके इंटू r कर लेते हैं। देन दिस कैंसिल आउट टू दिस r n प्लस 1 और ये होगा n माइनस r फैक्टोरियल। दिस n माइनस r फैक्टोरियल से n माइनस r फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। ये टर्म आएगी r अपॉन n माइनस r प्लस 1 इज इक्वल टू 3/5। दिस 5r इज इक्वल टू 3n माइनस 3r प्लस 3। इसको सोल्व करेंगे, देन दिस 3n दिस माइनस 8r 3n माइनस 8r इधर आके 8r हो जाएगा और इज इक्वल टू माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3। इस टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई करके और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास टर्म आ जाएगी। इक्वेशन हमारे पास आ गई है। इस इक्वेशन में n और r की वैल्यू निकालनी है। इस इक्वेशन को दिस इक्वेशन 1 दिस इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 को और 2 को सोल्व करेंगे n और r के लिए। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें उसमें से, देन 3n माइनस 8r इज इक्वल टू माइनस 3। इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, देन 2n माइनस 8r और 5 to 10 इज इक्वल टू माइनस 10। यहाँ पे वैल्यू अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस वैल्यू दिस प्लस दिस कैंसिल आउट टू दिस n इज इक्वल टू 7। n की वैल्यू हमारी 7 आई, n की वैल्यू पुट करेंगे r की वैल्यू निकल जाएगी। दिस 7 माइनस 4r इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 4r इज इक्वल टू माइनस 12 एंड r इज इक्वल टू 3। तो r की वैल्यू 3 आ गई हमारे पास और n की वैल्यू क्या आ गई 7। n और r की वैल्यू आपकी इस तरह से निकलेगी। n इज इक्वल टू व्हाट, n इज इक्वल टू क्वेश्चन n इज इक्वल टू 7 r इज इक्वल टू 3 इज द करेक्ट आंसर। एक बार दोबारा से बता देता हूँ, r माइनस 1th टर्म rth टर्म और r प्लस 1th टर्म की रेशियो दे रखी थी, इनके कोफिशिएंट की रेशियो। किसकी? कोफिशिएंट की रेशियो। तो हमारे पास एक्सपेंशन था, एक्सपेंशन को हमने r प्लस 1th टर्म जो जर्नल टर्म है उस जर्नल टर्म में लिख लिया। उसके बाद हमने r प्लस 1th टर्म निकाली तो r की वैल्यू r माइनस 2 होगी, तो r माइनस 2 से उसका कोफिशिएंट निकाल लिया, उसके बाद r माइनस 1 का और उसके बाद r का। तो ये हमने कोफिशिएंट निकाल लिए। कोफिशिएंट निकालने के बाद जो कोफिशिएंट की रेशियो है वो 1:3:5 के इक्वल रख दी। फिर पहली दो रेशियो को पहले दो के इक्वल रख दिया, अगली दो रेशियो को अगली दो के इक्वल रख दिया। वहां से हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन आई और उन दोनों लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर दिया n और r के लिए।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन 11th. क्वेश्चन है प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n is the expansion of 1 plus x raised to power 2n is twice of the coefficient of x raised to power n in the expansion of 1 plus x raised to power 2n minus 1. Prove that the coefficient of x raised to power n of expansion 1 plus x raised to power 2n 1 plus x raised to power 2n इसके x raised to power n का कोफिशिएंट निकालेंगे. एक एक्सपेंशन है हमारे पास 1 plus x raised to power 2n minus 1. एक इसका x का कोफिशिएंट निकालेंगे और हम प्रूव करेंगे कि जो एक का कोफिशिएंट है 1 plus x raised to power 2n का जो कोफिशिएंट है वो इसका डबल है. सबसे पहले हम x रेज टू पावर n का कोफिशिएंट निकालेंगे. द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n. जनरल टर्म लिखेंगे. जनरल टर्म tr plus 1 दिस n cr a raised to power n minus r b raised to power r. यहाँ पे इसकी जनरल टर्म क्या होगी? तो इसमें हमें निकालनी x raised to power n और x raised to power n b की वैल्यू. देन 2n c n 1 raised to power कितनी भी हो उसको छोड़ देंगे. दिस b is x raised to power n. The coefficient of x raised to power n is this. ये हमारे पास जनरल टर्म आ गई जिसको हमने x के जो r की वैल्यू है वो हमने क्या किया tn plus 1 n की वैल्यू को हमने r पुट कर दिया. r is equal to n एंड देन ये हमारे पास कोफिशिएंट आ गया. कोफिशिएंट को हम लिख सकते हैं 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल एंड 2n माइनस n फैक्टोरियल. इसको मैं लिख सकता हूँ 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल. इस फॉर्म में लिख सकता हूँ. नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है और उसमें उसकी फिर जनरल टर्म इज द सेम. देन इसको मैं लिखूंगा tn plus 1 क्योंकि हमें n की वैल्यू क्या r की वैल्यू क्या पुट करनी है n. देन 2n minus c n दिस x raised to power n. हमें x raised to power n की वैल्यू निकालनी है. उसका कोफिशिएंट निकालना है x raised to power n का. देन 2n minus 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल दिस 2n minus 1 minus n फैक्टोरियल x raised to power n. इसकी भी x raised to power n और इसका भी x raised to power n. देन इसको मैं लिख सकता हूँ. यहाँ पे था हमारा 2n और यहाँ पे 2n minus 1 फैक्टोरियल. पहले यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं. 2n minus 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल एंड 2n minus n minus 1 फैक्टोरियल. अब हम इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं. दिस 2n दिस 2n minus 1 फैक्टोरियल अपॉन दिस n फैक्टोरियल. इसको मैं लिखूंगा n फैक्टोरियल दिस n into n minus 1 फैक्टोरियल. एक n को हमने बाहर निकाल लिया और n minus 1 फैक्टोरियल लिखा. इस n से ये n कैंसिल आउट हो गया. इसको मैं लिख सकता हूँ 2 into 2n minus 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल एंड दिस n minus 1 फैक्टोरियल एंड दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ दिस. ये हमारे पास ये रहा. इसका मतलब इसका कोफिशिएंट जो है वो इसका ट्वाइस है दिस. इसके कोफिशिएंट को मैं ये लिख सकता हूँ दिस ट्वाइस ऑफ x रेज टू पावर n. द कोफिशिएंट ऑफ
coefficient of 1 plus x raised to power coefficient of x raised to power n in expansion what expansion 1 plus x raised to power 2n is twice of this coefficient of 1 plus x raised to power 2n and this आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन. फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m for which the coefficient of x square in the expansion of 1 plus x raised to power n. The expansion is given. What is the expansion? Expansion is 1 plus solution 12 1 plus x raised to power m and the coefficient of x square दे रखा है 6 के इक्वल. सबसे पहले एक्सपेंशन गिवन में है. जब भी हमारे पास एक्सपेंशन गिवन में होता है हम उसकी जनरल टर्म निकालते हैं कोफिशिएंट निकालने के लिए. दिस t r plus 1 n c r a raised to power n minus r b raised to power r. हमने x की जो b है हमारे पास b है x और x स्क्वायर हमें कोफिशिएंट निकालना है. दैट मींस दिस t21 r की वैल्यू हमने 2 पुट कर ली. दिस n mc2 a 1 है 1 raised to power दिस m minus 3 कुछ भी हो हमारे पास m minus 2 कोई फर्क नहीं पड़ता. दिस b is x raised to power r is 3 r is 2 sorry 2 this 2 क्योंकि x square का कोफिशिएंट निकालना है. This coefficient of mc2 x square that means coefficient of this और इस कोफिशिएंट को मैं लिख सकता हूँ m factorial upon 2 factorial and m minus 2 factorial. But given this m factorial upon 2 factorial and m minus 2 factorial is equal to 6 which is given. ये हमारे पास given है. इसके जो कोफिशिएंट है वो 6 के इक्वल दे रखा है तो हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है. किसकी? m की. देन m into m minus 1 into m minus 2 factorial upon this 2 into 1 and this into m minus 2 factorial is equal to 6. This m minus 2 factorial cancel out to m minus 2 factorial. This 6 to 12. This m square minus m minus 12 is equal to 0 is a quadratic इक्वेशन आ गई. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करेंगे. देन m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3m माइनस 12 इज इक्वल टू 0. फर्स्ट टू टर्म में से m कॉमन m माइनस 4 प्लस 3 दिस m माइनस 4 इज इक्वल टू 0. देन m माइनस 4 इज अ फैक्टर and m plus 3 is a factor. Either m minus 4 is equal to 0 or m plus 3 is equal to 0. Then m is equal to 4 or minus 3. तो ये m की वैल्यू minus 3 तो हो नहीं सकती. That means this is rejected. ये रिजेक्ट हो जाएगी तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4. m की वैल्यू क्या आएगी? 4. तो m की वैल्यू हमने निकाल दी. m की वैल्यू 4 होगी इस एक्सपेंशन में. कंप्लीट एक्सरसाइज 8.2 मिसलेनियस रहती है अब आपकी और मिसलेनियस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे. थैंक यू.